Good morning and a very warm welcome to all our viewers on Doordarshan Sports as we bring you this morning live show, Sports Cafe. I'm your host Arjun, and joining me in the studio is our eminent sports expert and senior sports journalist within Navbharat Times, sports editor, Shri Sanjeev Kumar. Sir, a very warm welcome to you in the program. Thank you very much. Good morning आपको भी और सभी देखने वालों को भी. Well, good morning to all our viewers, and we'll begin our program now with the top headlines from tennis, badminton, cricket and football. Tennis, after 27 years, Leander Paes dropped from the Davis Cup squad against Uzbekistan. PV Sindhu jumps to world number 2 and Saina Nehwal drops to number 9 in the badminton rankings. IPL, Steve Smith, Ajinkya Rahane power, rising Pune Super Giants to big win over Mumbai Indians. And in football, India surged to 101 in the latest FIFA rankings, their best since 1996. Well, those were the top rankings. It's time now for the story segment, beginning with tennis. And Leander Paes no longer in the squad against Uzbekistan. As far as tennis is concerned, let's look at the press coverage on that news. Paes has shown the exit door. Mahesh Bhupati, the non-playing captain, picks Rohan Bopanna over Leander for the Uzbekistan tie. Times of India, Paes axed after 27 years of duty. Veteran says selection criterion not followed by Mahesh Bhupati. Hindustan Times, Bhupati drops Paes from Cup squad. Indian Express, Leander Paes. Leander Paes accusing Mahesh Bhupati of nepotism. Dainik Jagran, Leander Paes हुए Davis Cup team से बाहर. Originally in the reserve squad and then not picked for the doubles tie. Hindustan, Bhupati ने Paes को 27 साल में पहली बार बाहर किया. अमर उजाला, Paes 27 साल में पहली बार टीम से बाहर. दैनिक भास्कर, Paes को झटका, 27 साल बाद डेविस कप टीम से बाहर. 43-year-old Leander Paes quite visibly upset over his acts from the Davis Cup tie. Let's try and understand what are the circumstances behind Mahesh Bhupati's decision in this regard. Sanjeev ji, it's quite controversial when a senior player is removed from the squad in this manner, but there are some realities that have to be borne in mind. He's 43 years old and not in the best of form. There are other younger players who are looking to make it into the squad. So, how would you explain the conduct of Mahesh Bhupati in this regard? एक तरह से तो देखा जाए तो जिस तरह से उनको कहा गया, एक तस्वीर है अभी जो आप दिखा रहे थे और टाइम्स ऑफ इंडिया में, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है जिस हॉल में, और बाहर दरवाजे के पास लिएंडर पेस हाथ बांधे खड़े हैं, वहाँ से देख रहे हैं. वो शायद ऐसा, और जैसा एक हेडिंग भी थी कि शोन द डोर, तो वो दरवाजे पे खड़े हैं. तो ये थोड़ा एक इतने लेजेंड, इतने बड़े प्लेयर के लिए अच्छा नहीं लगता. एक फैंस के लिए भी पर्सनली तो उन्हें बहुत ही ख़राब लगा है जिस तरह से उनका बयान आया है. लेकिन दूसरी तरफ देखें तो रियलिटी ये है कि 28 मार्च को जब टीम का अनाउंसमेंट हुआ था तभी बताया गया था कि आप रिज़र्व में हैं. फॉर दैट मैटर रोहन बोपन्ना भी रिज़र्व में थे. ये तभी उनकी एंट्री पॉसिबल थी जब एक कोई प्लेयर इंजर्ड हो. यहाँ यूकी भामरी इंजर्ड हुए, उसके बाद एक जगह बनती थी क्योंकि 4 ही प्लेयर्स आप चुन सकते हैं, और हाफ एन आवर पहले जो ड्रॉ निकाले जाते हैं उसके पहले तक आप अपने टीम के प्लेयर्स का नाम बदल सकते हैं. उसी का फ़ायदा उठाते हुए आखिरी वक्त पे उन्होंने शायद एंट्री दी, और उसके बाद बताया होगा या उसके थोड़े पहले बताया होगा. यस, वो जब वो पिछले संडे से शायद वहाँ बेंगलोर में बोपन्ना वहीं के हैं, भूपति वहीं के हैं, और एक आदि प्लेयर वहीं के हैं. तो वो सारे वहीं थे. लिएंडर पेस कहीं बाहर थे और वहाँ से वो आए, और जैसा कि भूपति का कहना है कि बाकी प्लेयर्स खेल रहे थे, लेकिन लिएंडर पेस को एक जो प्रैक्टिस मैच था वो खेलने को मिला, जिसमें 2 गेम ही वो खेले थे, कोई बारिश शुरू हो गई तो उन्होंने उनको खेलते हुए भी नहीं देखा.
और हाल फिलहाल लिएंडर का जो फॉर्म है बहुत अच्छा नहीं रहा, हालांकि एक चैलेंजर वो जीत के आए हैं मैक्सिको में। बोपन्ना ने बहुत कुछ नहीं किया, बट रैंकिंग वाइज थोड़ा डिफरेंस है, 24th रैंक्ड है भूपति, माफ कीजिए बोपन्ना, बल्कि 53rd रैंक है पेस। तो थोड़ा सा वो उनके जहन में लगा होगा, और उनका कहना था कि थोड़ा सर्विस अच्छी है उनकी, और इसी वजह से बोपन्ना को रखा गया है। Well, next up is the story from badminton, where PV Sindhu has now jumped to number 2 in the world rankings, and Saina Nehwal number 9. Let's look at the press coverage on that. Mail today. Sindhu scales career best world number 2 ranking despite the loss in the Malaysian Open round 1 exit, but she had won the Indian Open against Marolina Karan. Times of India. Sindhu is world number 2 now. Saina Nehwal, world number 9. Hindustan Times, Sindhu jumps number 2 in the world rankings. Saina drops to 9th. Indian Express, Sindhu's world number 2. The pictorial we saw earlier with Sindhu winning against Carolina Marin in straight games in the Indian Open. दैनिक जागरण, सिंधु करियर के सर्वश्रेष्ठ दूसरे रैंकिंग पर। Also there with Ajay Jairam in the quarterfinals of the Malaysia Open. हिंदुस्तान, इंडिया ओपन किताब ने सिंधु को नंबर 2 खिलाड़ी बनाया। अमर उजाला, सिंधु वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर पहुंची। दैनिक भास्कर, करियर के सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर भारतीय स्टार पीवी सिंधु। We're just looking at her success in the Indian Open, where she defeated Carolina Marin in straight games. But despite the loss in the Malaysian Open, she's now world number 2. Are you in agreement with the rankings? And how do you see Saina Nehwal coming back? रैंकिंग पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे इंडियन ओपन में जब वो जीती थी तो विनर को 9,200 पॉइंट मिलते हैं। तो अभी जो टॉप 6 प्लेयर्स हैं जो विमेंस में, उनके बीच जो पॉइंट्स का बहुत कम डिफरेंस है। जो टॉप प्लेयर हैं टाइजू, उनके अंक थोड़े से ज़्यादा हैं, 1200 अंकों का फ़र्क है। बाकी के जो प्लेयर्स हैं 200 100 ऐसे हैं, और एक एक बड़े इवेंट जीतने पर अभी जो मलेशिया में चल रहा है वो सुपर सीरीज प्रीमियर इवेंट है, जो इससे जो इंडियन ओपन था उससे एक स्टेज ऊपर है। यहाँ पर जो विनर होगा उसको 11,000 पॉइंट मिलेंगे। तो कैरोलिना जो 3rd पे चली गई है अभी वो क्वार्टर फाइनल में पहुँच चुकी है। तो अब नेक्स्ट जो रैंकिंग आएगी, सिंधु फिर नीचे आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ वो पहले राउंड में हार गई थी। तो ये पॉइंट्स का जो ऊपर नीचे होता है एक टूर्नामेंट जीतने और हारने के बाद, उससे इनको फ़ायदा हुआ। लेकिन नेक्स्ट जो रैंकिंग आएगी इसमें पूरी उम्मीद है कि वो नीचे चली जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी क्वार्टर फाइनल में ताइजू भी पहुंच चुकी है, जो टॉप रैंक प्लेयर हैं वो ऑलरेडी वहां सेफ हैं। और उसके बाद कैरोलिना जो तीसरे पे चली गई दूसरे से, वो भी, और उसके नीचे भी जो प्लेयर्स हैं वो भी इनसे ज़्यादा पॉइंट्स लाएंगे। तो हो सकता है ये 4th 5वीं रैंकिंग में आ जाए नेक्स्ट रैंकिंग में। तो ये कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं जीतना, बल्कि रेगुलर जीतते रहना है। और जैसा आपने साइना के बारे में कहा, साइना चूंकि नहीं जीत रही है, पहले राउंड दूसरे राउंड में बाहर हो रही है, जो पुराने जो एक्यूमुलेट किए हुए पॉइंट्स है उसी वजह से वो टॉप 10 में बनी हुई है। लेकिन वो कंसिस्टेंटली अगर हारती रहेंगी तो शायद वो और नीचे चली जाए। Well, the rankings are based on form, and speaking of form, Ajay Jairam has reached the quarterfinals of the Malaysian Open. Let's look at the press coverage on that. Jairam upsets Axelsen in Malaysia. Mail today. Hard-fought game where he defeated after losing the first game, 9-21, winning 21-14, 21-19. Times of India. Ajay avenges Delhi defeat to enter quarterfinals of the Malaysian Open. Hindustan Times, Jairam in Malaysia quarterfinals. This is the same event where PV Sindhu and Saina Nehwal lost in the first round. Indian Express, Ajay overcomes India Open winner Victor Axelsen in 3 games. Hindustan, Jairam number 2 Victor को हराकर क्वार्टरफाइनल्स में। दैनिक भास्कर, दूसरी वरीयता को लुढ़का अजय क्वार्टर फाइनल में। Well, finally, the men's once again coming to the fore in men's badminton.
संजीव जी, अजय जयराम अब क्वार्टर फाइनल्स में हैं, आगे उनका कौन ओपोनेंट मिलेगा और विल ही बी एबल टू डिफीट हिम? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो सिंधु पहुंची थी नंबर 2 पे, वो तो तय था कि वो नेक्स्ट रैंकिंग में ऊपर की ओर जाएंगी, क्योंकि वो एक बड़े टूर्नामेंट को जीत के गई थी। यहाँ ये बड़ी जीत है, उससे उस सफलता से बड़ी सफलता मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि अजय जयराम उस प्लेयर के अगेंस्ट में थे जो वर्ल्ड का भी बेस्ट टॉप 2 प्लेयर्स में आता है, नंबर 2 रैंक्ड है, और इंडियन ओपन में अभी हराया था विक्टर ने उनको। और यहाँ जिस तरह से वो जीते, पहला गेम हारने के बाद 21-9 ऐसा लग रहा था कि आसानी से हार जाएंगे, फिर कमबैक करते हुए उन्होंने लगातार 2 गेम जीता, डोमिनेट किया। तो इससे लगता है कि कितने कमिटेड थे, और इससे उनको फ़ायदा भी हुआ, उनकी रैंकिंग भी 4-5 ऊपर वो पायदान चढ़े हैं। नेक्स्ट उनके जो ओपोनेंट है वो सॉन हैं साउथ कोरिया के, और वो टफ है क्योंकि वो नंबर 4 प्लेयर हैं और उनसे थोड़ी उम्र कम है, फॉर्म में है। देखना है कि किस तरह से वो चुनौती का सामना करते हैं, लेकिन ये भी अगर जीतते हैं तो उनकी रैंकिंग में कम से कम फ़ायदा ज़रूर होगा, आगे की ओर तो ज़रूर बढ़ेंगे, रैंकिंग में भी फ़ायदा होगा। तो अजय जयराम क्या ये पुलेला गोपीचंद एकेडमी से जुड़े हुए हैं और इनका क्या योगदान रहा है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो हमारे जो प्लेयर्स हैं जो भी अच्छा कर रहे हैं अभी, उसके 2 ही कहें कि एक तरह से जगह हैं जहां पर वहां से निकल रहे हैं। एक तो हैदराबाद से जहां गोपीचंद ट्रेनिंग देते हैं, और एक तो बेंगलोर में है जहां पर विमल कुमार ट्रेनिंग दे रहे हैं, और प्रकाश पाडुकोन बैडमिंटन एकेडमी है। बेस्ट प्लेयर्स वहीं से निकल रहे हैं और ये वहीं से जुड़े हैं। और यही प्लेयर नहीं, बल्कि जो रिजर्व प्लेयर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो 16 साल के हैं, 14 साल के हैं, 12 साल के, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। इंटरनेशनल सर्किट में बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दे रहे, बट वो भी अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर रहे हैं जगह जगह। तो ये वहीं से जुड़े हैं और आने वाले दिनों में उम्मीद कर सकते हैं कि और ये आगे जाएं। Well, moving on to our staple diet of cricket in the IPL 10th edition, where the rising Pune Super Giants has defeated Mumbai Indians in their game with Steve Smith declared the man of the match. Let's look at the press coverage on that. Captain Marvel mailed today covering that match with Steve Smith declared the man of the match with his unbeaten 84. Times of India, Super Smith rises. Pune captain's unbeaten 84 does it for the team. Ajinkya Rahane also contributing 60 runs. Hindustan Times, Rahane Smith gives Giants super win against Mumbai Indians. Indian Express, Dhoni watching. Smith does a Dhoni. Dhoni in that game finishing the game with 12 not out. दैनिक जागरण, पुणे की जीत में चमके स्मिथ और रहाणे। हिंदुस्तान, स्मिथ के धमाके से पुणे ने मुंबई को पीटा। अमर उजाला, स्टीव स्मिथ के दम पर पुणे की सुपर जीत। दैनिक भास्कर, स्मिथ रहाणे रहे पुणे के राइजिंग स्टार। Well, as the headline suggested there, Pune coming up with a vital win against Mumbai Indians, managing to score 187 in 19.5 overs. So, यहाँ स्टीव स्मिथ का जो योगदान रहा है of 84 not out with 3 sixes and 7 boundaries, अजिंक्य रहाणे स्कोरिंग 60, तो पुणे एज अ टीम आप उसको कैसे रेट करेंगे? और आगे का मैच भी आ रहा है बिटवीन गुजरात लायंस एंड कोलकाता नाइट राइडर्स। देखिए ये टीम जब पिछले साल बनी थी, धोनी कैप्टन थे, ऑलमोस्ट बहुत सारे प्लेयर जो चेन्नई सुपर किंग्स में खेलते थे, दो टीमें नई बनी थी और 2 बैन हुई थी, लगभग वहीं के प्लेयर दोनों टीमों में स्प्लिट हुए थे। ये टीम बहुत स्ट्रांग मानी जा रही थी, लेकिन बहुत नीचे चली गई, लास्ट हुई, तो उसकी कई वजह रही। बहुत अच्छा टीम कॉम्बिनेशन नहीं बन सका, कई बार स्टार प्लेयर्स अच्छा नहीं कर सके। तो यहाँ पर इस बार उम्मीद की जा रही थी कि उनका रिवाइवल होगा। उनके ओनर्स ने धोनी से बातचीत की और धोनी को ये मनाया कि भाई आप फ्यूचर को देखते हो, स्मिथ से हम कैप्टेंसी कराना चाहते हैं। उसकी सहमति दी धोनी ने, और अब इनकी कप्तानी थी, और कप्तानी इनिंग्स खेल कर उन्होंने जिस तरह से जिताया, कमाल की इनिंग्स खेली उन्होंने, लास्ट तक टिके रहे
और अमेजिंग बैट्समैन है। देखिए इनके एक मैं छोटी बात बताना चाहूँगा कि पूछा गया था अभी इस टेस्ट सीरीज के दौरान कि उमेश यादव से कि एज ए बॉलर आप बताएं कि उनको आउट करना इतना मुश्किल क्यों है। टेस्ट मैच में 61-62 की एवरेज, 50 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेल चुके हैं, T20 में, वनडे, हर फॉर्मेट में ये रन बनाते हैं और कहीं भी बनाते हैं। इंडिया में हमेशा लगता है, इंडिया को ऐसा लग रहा है कि उनके लिए कुछ है ही नहीं, इंडिया में आके बहुत सारे इतने तनाव इतने दबाव के बाद बना रहे। तो उमेश यादव ने यही कहा कि जिस तरह से वो स्टांस लेते हैं, वो अगर गार्ड लिया है उन्होंने लेग स्टंप का, तो तुरंत सफल करके वो ऑफ स्टंप पे आ जाते हैं। आप बॉल रिलीज करते हैं, आपको पता नहीं है कि कहाँ जाके खेलेंगे, तो जितनी जल्दी शफलिंग करते हैं बॉलर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी लाइन में उनको बॉल डालें, और ये बहुत उनकी बड़ी काबिलियत है। कल ये भी देखने को मिला कि किस तरह से वो सफल करके जाके उन्होंने किधर किधर शॉट लगाए, और ये बहुत बड़ा योगदान रहा कि लास्ट तक फ्लेक्सिबिलिटी है स्टीव स्मिथ में। हमने देखा है इनके ऑलमोस्ट ब्रैडमनिस्क जो उनकी जो रन गेटिंग स्प्री है। आज का जो मैच है गुजरात और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में, उस मैच में किस तरह का धमाकेदार होगा? देखिए दोनों और अच्छे प्लेयर्स हैं, अटैकिंग प्लेयर्स हैं, बट गुजरात को थोड़ा एडवांटेज होगा कि पिछले साल गुजरात ने बहुत आगे तक टीम गई थी, हालांकि खिताब नहीं जीत सके, लेकिन अपने लीग राउंड में टॉप पे रहे थे वो, और बहुत ही अच्छा खेले था। इनके पास बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बॉलर्स भी है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन इनके पास, और अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। थोड़ा डिफिकल्ट होगा कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। Well, next up is a story from soccer where India surged to 101 in the FIFA World Rankings. Let's try and understand how India reached that ranking from the best coverage. Indian football team reaches two-decade-high 101 rank according to Mail Today. Times of India. India rise to 101, ranked 11th in Asia. Hindustan Times, India's big leap in football rankings to 101. Indian Express, 101, India's highest FIFA ranking in 2 decades. दैनिक जागरण, भारत ने हासिल की 20 साल में फीफा के सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग। अमर उजाला, भारत पिछले 20 साल में फीफा के श्रेष्ठ रैंकिंग पर। दैनिक भास्कर, फुटबॉल में भारत 21 साल के बेस्ट रैंकिंग पर, वर्ल्ड में 101वें और एशिया में 11वें स्थान पर। Well, India improving its ranking by 31 places. So let's try and understand how that was the case. संजीव जी, पहले रैंकिंग थी 132, अब 101 हो गया, वो कैसे हुआ? देखिए वो भी नहीं थी 2 साल पहले, जब हमारे जो अभी कोच हैं, नेशनल कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, उन्होंने जब ज्वाइन किया था तो 177वें नंबर पे थे, 177th नंबर। और होता यह है कि आप इंटरनेशनल सर्किट में जितना ज़्यादा खेलते हैं और जितना ज़्यादा मैच जीतते हैं तो ऑब्वियसली आपके पॉइंट्स एक्यूमुलेट होते हैं। अभी भारत ने पिछले 2 साल में लगातार जीत हासिल की। हालांकि ये जीत बड़े देशों के खिलाफ नहीं थे, जब आप कंबोडिया को हरा दे, म्यांमार को हरा दे, नेपाल को हरा दे, लेकिन ये देश भी आप हराते तो पॉइंट्स मिलते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, और इससे धीरे धीरे आप आगे बढ़ते, क्योंकि जो नीचे के रैंक के जो देश है उन्हें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स का डिफरेंस नहीं है। अभी आप 20 मैच भी जीत जाएंगे तो आप टॉप 20 में नहीं आएंगे और आपको बड़े देशों के खिलाफ खेलने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अब जाके इंडिया को 100 अंडर जो 100 के नीचे जो देश हैं उनके खिलाफ कुछ मैचेज हैं, खेलना है, उनको हराते तो हो सकता है कि नेक्स्ट रैंकिंग में हम टॉप ईयर एंड तक जाते जाते 100 में शामिल हो। तो इसी तरह है, अगर आप इंटरनेशनल मैचेज जीतते जाते हैं, पॉइंट्स एक्यूमुलेट करते जाते हैं, तो रैंकिंग में फ़र्क आता है। Well, there's some more good news as well from boxing with Shyam Kumar in the finals of the 49-kilogram weight category in the Thailand Boxing International event. And we also have Rohit Tokas, who is a bronze medal winner. Let's look at the press coverage on that. Times of India. Shyam enters the final. Rohit settles for bronze. Rohit losing in the semi-final bout in the 64-kilogram weight category. Hindustan Times, Shyam Kumar in a final in the 49-kilogram weight category after he defeated his Mongolian opponent.
दैनिक जागरण, शाम फाइनल में रोहित हारे। हिंदुस्तान, शाम फाइनल में रोहित को कांस्य। रोहित टोकस विनिंग द ब्रॉन्ज मेडल, लूजिंग सेमीफाइनलिस्ट। अमर उजाला, थाईलैंड बॉक्सिंग टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे श्याम कुमार। दैनिक भास्कर, मुक्केबाज शाम फाइनल में रोहित को ब्रॉन्ज मेडल। तो श्याम कुमार इन द फाइनल ऑफ दिस 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी। कल हम बात कर रहे थे किस तरह से जो छोटे वेट कैटेगरी में हमारा प्रदर्शन बेहतर रहा है, तो श्याम कुमार अब किसका सामना करेंगे इन द फाइनल्स? ये अभी ओलंपिक चैंपियन है दुस्तमो हसनबॉय दुस्तमे नाम है, जो कि उज़्बेकिस्तान के हैं और एक टफ ओपोनेंट हैं, तो वो थोड़ा आसान नहीं होगा। लेकिन याद दिला दूं कि इसी टूर्नामेंट में 2 साल पहले श्याम कुमार ने गोल्ड मेडल जीता था और रोहित जो है वहाँ पे ब्रॉन्ज जीते थे। तो जैसा रोहित अब तो ब्रॉन्ज जीत चुके हैं, उम्मीद करें कि ये फिर से एक बार गोल्ड जीत के आए, लेकिन थोड़ा टफ ओपोनेंट है इस बार, जो कि उज़्बेक बॉक्सर हैं और अभी के ओलंपिक चैंपियन हैं। Well, that's the end of the story segment. Next up is our yoga segment with Yogacharya Varun Arya ji. सबसे पहले ताड़ आसन, खड़े हो जाइएगा। ताड़, जैसा कि मैंने बोला, ताड़ आसन, ताड़ एक वृक्ष का नाम होता है। यह जो वृक्ष होता है यह हाइट के लिए जाना जाता है, इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाइएगा, श्वास भरते हुए इनहेल, और दोनों थंब को आपस में टच कर लीजिएगा, ऊपर से उंगलियां मिली हुई, और अब पूरी बॉडी को स्ट्रेच कीजिएगा और होल्ड कीजिएगा। गुड, रिलैक्स, धीरे धीरे से नीचे आइएगा और दोनों हाथों को नीचे ले आइएगा। देखिएगा मित्रों, इसमें पूरा जो है हमारी पूरी बॉडी का मसल्स जो है अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। अब हमारा जो अगला आसन है इसी क्रम में, वह है विमान आसन, एरोप्लेन पोज। कैसे हमें जो है एरोप्लेन की तरह बनना है, चलेगा। दोनों हाथों को साइड में फैलाइएगा, इनहेल, और सामने की तरफ झुकते हुए लेफ्ट लेग को उठाएगा, इनहेल, उठाएगा, होल्ड कीजिएगा, अच्छे से सामने देखिएगा, रिलैक्स, रिलैक्स। विमान आसन का जो फायदा है दर्शकों, वह जैसे हमने दोनों हाथों को जो है अपना साइड में फैलाया, तो हमारे लंग्स को अच्छे से जो है एक्सपेंड करता है ये, जिससे अच्छे से ब्रेथ हमारे शरीर में आ जाता है और जिससे हमें श्वास संबंधी तकलीफों से हम दूर रह सकते हैं। अगला जो आसन है हमारा, वह है वृक्ष आसन। लेफ्ट लेग को राइट लेग के पास में रखिएगा, आराम से, गुड, और इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइएगा और बिल्कुल ऊपर अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, श्वास रोक करके रखिए, गुड, रिलैक्स। अब धीरे धीरे से नीचे आइएगा, अब पैर को उतार लीजिएगा, गुड। यह था वृक्ष आसन। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला आसन है दंड आसन। नीचे बैठ जाइएगा, कोशिश करें जब भी हम नीचे बैठ करके करने वाले आसन करें तो एक बार दंड आसन जरूर से भी जरूर करें। दंड यहाँ पर कहा गया है जो है स्पाइन को, पहले भी मैंने बताया है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसको दंड कहा गया है, मेरुदंड। तो इसको सीधा करने से आजकल हम देखते हैं बच्चे जो हैं झुक करके काम करते हैं, तो हल्का सा जो है बोन में कुछ धीरे धीरे प्रॉब्लम भी आने लगती है, और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो कुछ झुकाव भी आ जाता है। तो वो सब चीज़ें इसको करने से नहीं होंगी। तो अब हमें करना है, अगला जो आसन है हमारा वो है सिंहासन। सामने से नीज को ओपन कर लीजिएगा, अपने घुटने खोलिएगा सामने से, और दोनों हाथों को नीचे की तरफ रखिएगा, दोनों पैरों के बीच में उंगलियां अंदर की तरफ रहेंगी, और जो पाम जो है, जो हथेली है, वो बाहर की तरफ निकालनी है हमें। श्वास भरा, टंग को बाहर निकालना है, चिन पर टच करने की कोशिश करनी है ऐसे, और ऊपर की तरफ देखते हुए हमें धाड़ना है, अच्छे से शेर की तरह आवाज निकालनी है ऐसे, गुड, रिलैक्स। सीधे बैठ जाइएगा वज्रासन में। यह था मित्रों सिंहासन।
कैसे शेर की तरह इसमें जो है हमने धाड़ करके दिखाया। शेर की तरह इस आसन को जो है धाड़ने से जो फ़ायदा जो हमें मिलता है वह हमारा साउंड सिस्टम अच्छा होता है, हमारा जो है थायराइड ग्लैंड उससे अच्छा रहता है, और जो है हमारा जो है लंग्स की जो कैपेसिटी है वो इससे जो है डेवलप होती है, अच्छे से बढ़ती है। अब अगला जो आसन है हमारा वह है शशांक आसन। शशांक का मतलब होता है खरगोश, रैबिट। जो है यह आसन हमारे ऋषि मुनियों ने जो है खरगोश से सीखा है। दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, इनहेल, और सांस को बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने रखना है और सर को नीचे टच करना है, एक्सेल, गुड, और होल्ड कीजिए आप। देखिए शशांक आसन, इस आसन का जो फायदा है मित्रों वह यह आसन हमारे जो है स्पाइन को रिलैक्स करता है, हमारे जो है बॉडी से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मददगार है, और साथ ही साथ हमारे जो लंग्स की जो कैपेसिटी है उसको अच्छे से इम्प्रूव करता है। अब धीरे से वापस आइएगा, इसी क्रम में धीरे से श्वास अंदर लीजिएगा, गुड। अब दोनों पैरों को सीधा कर लिया, वापस दंड आसन में आइएगा। अब हम आपको दिखाएंगे जो अगला जो आसन है वह है शवासन। लेफ्ट साइड करवट लीजिएगा, लेफ्ट साइड, और सीधे लेट जाइएगा शवासन में, गुड। अब दिखाएंगे मित्रों हम आपके सामने सर्वांग आसन। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है सर्व अंग आसन, यानी कि सभी अंगों का आसन। दोनों पैरों को मिलाइएगा और धीरे धीरे से दोनों पैरों को बिल्कुल ऊपर उठाना है हमें 90 डिग्री पर। बच्चों को जो है आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों के जो हैं बाल जो हैं वो वाइट हो जाते हैं, उनको आइज़ की प्रॉब्लम आ जाती है, उनको जो है स्पेक्स लग जाते हैं, तो उन सब में ये काफ़ी मददगार है। अब धीरे से सिर्फ पैरों को 90 डिग्री पर उठाइएगा, सिर्फ पैरों को, गुड। अब धीरे से पूरी बॉडी को ऊपर उठाने की कोशिश करो। दोनों हाथों को जो है हिप्स के पीछे वेस्ट वाले पोर्शन पर सपोर्ट दीजिएगा, गुड। टो को ऊपर स्ट्रेच कीजिए और टो पर देखना है हमें। देखिए इस आसन की एक खासियत और है, इस आसन में जो है हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेशन जो है सर की तरफ आ जाता है। अब धीरे धीरे वापस पैरों को फोल्ड कीजिए नी के पास से आराम से, और धीरे धीरे से नीचे लेकर आइएगा, रिलैक्स। अब हमारा अगला आसन है चक्रासन, ब्रिज पोज। दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिएगा, गुड, और एक 1 फीट का गैप कीजिएगा दोनों पैरों के बीच में। दोनों हाथों को शोल्डर के पास लगाइएगा। मित्रों यह आसन बच्चे आराम से जो है ये कर सकते हैं, खेल खेल में इसको जो है कर सकते हैं वो। अब श्वास भरते हुए पूरी बॉडी को जो है ऊपर उठाइएगा, इनहेल, गुड, और होल्ड कीजिएगा। देखिए ध्यान से मित्रों, यह आसन पूरा जो है हमारी कमर को जो है स्ट्रेच किए हुए है, पूरा टमी जो है इससे खिंचा हुआ है, और पूरा जो है आर्म्स के ऊपर अच्छे से स्ट्रेच आया हुआ है। ऐसे ही पूरे थाइज को जो है स्ट्रेच किया हुआ है, यानी कि पूरी बॉडी के जो है मसल्स को अच्छे से इस आसन में जो है स्ट्रेच हमने किया है। अब धीरे धीरे से नीचे आइएगा आराम से, शोल्डर के पास वाला हिस्सा नीचे, उसके बाद हिप्स को नीचे। अब पैरों को सीधा कर लीजिएगा। जो लोग रेसलिंग करते हैं, जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट, जो रेसलर्स जो स्पेशली हैं, अगर वो हल्का हल्का इस टाइप का कुछ योगा, कुछ सूक्ष्म क्रियाएं अगर अपनी रेसलिंग में एक पार्ट उसका बनाएं, तो जो है मेरा पूरा विश्वास है उन लोगों को बहुत जल्दी ही अपनी जो है परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों अपने बच्चों को अगर आप इंडोर गेम्स की बजाय स्पोर्ट्स और आउटडोर गेम की तरफ मोटिवेट करेंगे तो वो भी उनके लिए बहुत अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही, अब हमें दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए याद रखें, हेल्दी लिविंग वेल्दी लिविंग। Well, that was Yogacharya Varun Arya ji showing us how to perform the asanas to improve our lung capacity and ensure that our bone structure is also developed so that it will help us age better. It's also time for us to thank our eminent sports expert and senior sports journalist who is a sports editor with the Navbharat Times, Shri Sanjeev Kumar. Sanjeev ji, thank you so much for being with us on Sports Cafe. Thank you very much. It's also time for us to thank our viewers of watching Sports Cafe. But before that, we would like for you to connect with us on our social media websites.
Facebook, Twitter, YouTube, and Instagram. Do connect with us and let us know how we can improve our program Sports Cafe better. I hope you've enjoyed today's edition of Sports Cafe with diverse news from tennis, badminton, cricket, football, and boxing. Do join us again tomorrow, same time in the morning at 9 o'clock, which will finish at 9:30. Till then, it is namaskar and goodbye from me and rest of the Sports Cafe team.